एमटेक को लेके स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज्ड और हमसे पूछे जाते हैं इसको लेके काफी सारे सवाल विच इज व्हाई आई थॉट फॉर अ full proof solution and made this video with our very own guests. So, hello everyone and welcome to another episode of Experts Ki Rai, and in today's video we will discuss each and everything about BTech and MTech, WILP, hybrid, online, distance, evening, weekend. समझ रही हूँ इतने सारे नाम और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. सो हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब अप्रूव है भी या नहीं, और WILP कौन से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, AICT की इम्पोर्टेंस किसके लिए है, कौन सी यूनिवर्सिटी के पास AICT का अप्रूवल होना इम्पॉर्टेंट है, एंड और भी कई इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच नीड्स टू बी क्लियर. सो let's get started with our very own guest, Mr. Mayank Gupta, the CEO of College Vidya. चलते हैं फिर हॉट सीट पे. टेक्निकल एजुकेशन को लेके देर आर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स अमंग स्टूडेंट्स. बात करें हम बीटेक की, एमटेक की, MBA या फिर मैनेजमेंट प्रोग्राम या कोई भी अदर प्रोग्राम की बात करें तो बहुत ज़्यादा हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है. बट टेक्निकल एजुकेशन को लेके देर आर अ लॉट ऑफ व्हाट एंड व्हाईज की कहाँ से करें, AICT अप्रूवल क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ड रहेगी, क्यों करें, मतलब इसके रिगार्डिंग जैसे हो गया WILP प्रोग्राम एंड आपका पार्ट टाइम प्रोग्राम हो गए. सो एक हाइब्रिड भी आया नया, तो स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें ना अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, उनको बहुत डाउट्स है इससे रिलेटेड, विच इज़ वाई वी कॉल्ड यू कि आप हमेशा जैसे स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. आज इसके रिलेटेड भी एक पूरा अच्छा सा हम सेशन लेते हैं एंड उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए. सो हेयर वी हैव आवर CEO of College Vidya, Mr. Mayank Gupta. Welcome, sir. Thank you, Pooja. Uh, in fact, today's topic is very interesting because I also came across to many students जी. who wish to pursue the technical programs like BTech, MTech, Diploma in Engineering, and they are very much confused. And the students who, especially from the working background, the confusion and the doubts are on the peak. When we talk about the 10 plus 2 students, it is very simple. They wish to go for a BTech program, तो वो रैंकिंग्स चेक कर लेते हैं, NAC की, NIRF की, पीयर ग्रुप से एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू ए वर्किंग प्रोफेशनल्स, द प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग इन. एंड द रीजन इज दैट BTech was never allowed, BTech or MTech was never allowed to pursue in a distance learning mode. आज साफ साफ कहा जाता है कि टेक्निकल एजुकेशन Is not permitted permitted in in a, online and distance in, mode. in online and distance learning mode. सो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं स्टूडेंट्स को. नाउ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन मोड और ए ऑनलाइन लर्निंग मोड. नाउ बहुत सारे बज वर्ड्स बीटेक और एमटेक के साथ चलने लग गए अब. बीटेक पार्ट टाइम, बीटेक इवनिंग, बीटेक वीकेंड, बीटेक Working professional. in a work integrated learning Work integrated mode. So let me first set a very first ground rule here that BTech and MTech cannot be pursued in a distance or in any online mode. It is a regular program. It is a regular degree program and regulated by a apex body called AICTE, All India Council for Technical Education. And they have never permitted neither AICTE nor UGC. Okay. So now एक प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं रह गई कि नाउ देयर इज नो is it good to say that there is no provision for the working professionals to upskill themselves or to reskill themselves or to obtain higher qualifications for the several purposes? No, ऐसा नहीं है. There are several options. In fact, जो अभी Ministry of Education ने 2020 में new education policy they have come up with, it has opened many things.
new education policy has come up with a lot of changes, a lot of Yes, new guidelines. yes, yes. Uh, I mean, we also have heard about dual degree, 2 degrees एक साथ. So there is a lot of things in new education policy. उसको भी understand करना is a task. Yes, yes. One more thing I wanted to clarify here, Pooja, for the students. AICTE भी बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि अगर मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूव नहीं हुआ तो क्या मेरा बीटेक एमटेक वैलिड होगा फॉर ए गवर्नमेंट जॉब फॉर द हायर स्टडीज फॉर द रिसर्च प्रोग्राम्स or for the government for the any kind of jobs. So let me clarify here that AICTE is simply a regulating body. There are different type of universities in our country. Broadly speaking, there are 5 type of universities. Right. So out of 5, there are 3 type of universities which does not require AICTE approval to run the BTech MTech programs. One is Central University, Yeah. State Public University, Yes. and the private university. Yes. These 3 type of universities does not require AICTE approval. Even AICTE ने अब अपने एक्ट में भी इसको ले आया है. तो there should be no confusion कि AICTE का अप्रूवल नहीं है तो बीटेक एमटेक अप्रूव्ड नहीं है. So ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए. या तो इस चीज को अब अप्रूवल समझना. जरूरत किसके लिए है ये भी मैं क्लेरिफाई करता हूँ. जी. अब मैंने 3 तरीके की यूनिवर्सिटी की तो बात कर ली. चौथा टाइप है डीम्ड यूनिवर्सिटी Deemed to be university. एंड फिफ्थ इज ओपन यूनिवर्सिटीज. तो चलिए ओपन को तो छोड़ देते हैं बिकॉज ओपन यूनिवर्सिटीज को टेक्निकल प्रोग्राम्स करवाने की कभी इजाजत है ही नहीं, तो जी. वो बीटेक एमटेक ऑफर ही नहीं करते, तो AICTE की उनको जरूरत भी नहीं है. बिल्कुल. डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बेसिस पे it was made compulsion कि any deemed university needs to be obtained prior approval from AICTE to run technical programs. And the colleges which are affiliated by some central universities or the state universities, Yeah. they need to be approved by the AICTE. अगर वो deemed university or colleges if they are not approved, then BTech MTech is not valid. फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग वो ऑफर ही नहीं करेंगे. अगर कर भी रहे ऑफर और बच्चा करता भी है तो इट इज नॉट वैलिड. So all the deemed universities needs to have this AICTE approval to offer technical courses. So sir, इसी के साथ let us be more focused on working professional program, क्योंकि सर जो other programs हैं अगर हम technical को छोड़ें तो फिर उन सब में तो ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से it is वैलिड, बट Yes. जब टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है और वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि उन्हें जॉब भी नहीं छोड़नी है और साथ ही साथ अपना जो कोर्स है वो भी परस्यू करना है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं. और इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि अब हम कहाँ से करें, कैसे करें, वैलिड होगा या नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग सर प्लीज़ बताइए. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन पूजा. आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, खासतौर पे जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन यस सर. करना चाहते हैं. और अदर देन टेक्निकल एजुकेशन ये क्वेश्चन आपको बहुत कम आते होंगे क्योंकि कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, आर्ट्स में, साइंस में, नॉट साइंस, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम्स आर अवेलेबल जी. इन ए डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन लर्निंग मोड, तो उनको जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ती और वो अपना प्रोग्राम भी कर लेते हैं. आराम से कर लेते हैं. जो टेक्निकल एजुकेशन में जो बीटेक एमटेक करना चाहते हैं बच्चे किसी भी रीज़न से, चाहे अपनी अपस्किल करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, या अब फिर तो अपस्किल करना ही बहुत 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 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है. हैज बिकम ए नेसेसिटी नाउ, यस. नॉट इम्पोर्टेंट. और सैलरी हाइक्स के लिए, जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए और अपना प्रमोशंस के लिए उन बच्चों को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है. 2020 में AICTE हैज़ कम अप विद अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड द स्टूडेंट्स दैट बीटेक और एमटेक. AICTE एक नोटिस लेके आया कि यूनिवर्सिटीज आर अलाउड टू कंडक्ट द क्लासेस इन एनी ऑफ द शिफ्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट्स. यस. मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून, इवनिंग, वीकेंड. तो जो बच्चे काम कर रहे हैं कहीं पर भी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इफ दे विश टू परस्यू बीटेक और एमटेक प्रोग्राम और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे कैन गो फॉर द इवनिंग क्लासेस और द वीकेंड क्लासेस, तो इट इज एज गुड एज डूइंग बीटेक एमटेक फ्रॉम द डिस्टेंस लर्निंग मोड.
फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल होगी गई ना, यहाँ पे, तो जॉब के बाद वो आराम से अपना क्लास कर सकता है. आराम से। This is the one option. Number two option, there are several universities I see जो एक मोड, एक लर्निंग मोड मैं बोलता हूँ WILP मोड यूज करके बीटेक एमटेक को ऑफर करती है. मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बीटेक WILP, तो WILP इज नॉट a word which only goes with the BTech MTech, because WILP is a learning mode, लर्निंग मोड। work integrated learning mode, जी। जहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ. फॉर एग्जांपल, दिस गाय इज रिकॉर्डिंग अस. Yes. अभी लेट्स इमेजिन कि ये अभी 1 घंटा पहले क्लासरूम में क्लास करके आए और कैमरा इन्होंने पकड़ लिया. बिल्कुल। तो इट इज एग्जैक्टली ये वर्क इंटीग्रेटेड Work लर्निंग integrated. प्रोग्राम. ओके, कि वो तो पढ़ भी रहा है और साथ-साथ अपना साथ में काम भी अप्लाई भी कर रहा है. apply भी कर इट इज सिंपली एक्वायरिंग ए नॉलेज एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज. पूरा एक तो साथ जो प्रैक्टिकल भी तो चल जो रहा है। वो लर्निंग आउटकम है वो 100% कैन बी अचीव्ड. सो दैट इज कॉल्ड WILP. बीटेक एमटेक ही क्यों, बाकी और में भी सब में ये हो रहा है. और अच्छा, अब ये यूनिवर्सिटीज WILP मोड में क्यों लाई इन प्रोग्राम्स को, पीछे 10 साल 15 साल में देखने को मिला है कि जॉब और जॉब रिक्वायरमेंट्स, अपने आप को सस्टेन रखने के लिए नई चीज़ें को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. जी। इतनी एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में, वर्क इन्वायरमेंट में, कि जो इंजीनियर्स थे उनको दे कैन नॉट सस्टेन इनटू द जॉब मार्केट इफ दे विल नॉट रीस्किल, इफ दे विल नॉट अंडरगो. कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो बढ़ गया. इफ दे विल नॉट अंडरगो इन फॉर द न्यू प्रोग्राम्स. एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इट ऑलवेज चेंजेस विद द टाइम्स. अभी हुआ क्या है कि अब वो टाइम इंटरवल्स बहुत छोटा हो गया. हर 2-2, 3-3, 6-6 महीने में चीज़ें बदल जा रही हैं. चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब ये जो इंजीनियर्स हैं ये क्या करें. एक तरफ से AICTE ने कर रखा था कि डिस्टेंस में ऑनलाइन में बीटेक एमटेक इज नॉट अलाउड. तो यूनिवर्सिटीज हैव कम अप विद दिस WILP learning programs, which I will not Allows say, them, which I will not say that they run on a distance learning mode, but a sort of that mode. Now how? पहली चीज तो इन प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटीज फ्रेश बच्चों को नहीं लेती. आई मीन टू से फ्रेश मतलब 10+2 पास करके जो बच्चे आते हैं. जी। इस प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटीज ज़्यादातर क्या 100% उन्हीं कैंडिडेट्स को लेती है जिन्होंने 3 साल का कहीं से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ हो. जी। तो ये इंश्योर करती है यूनिवर्सिटी कि ये एक 3 साल का रेगुलर प्रोग्राम किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ WILP प्रोग्राम जी। कि रेलेवेंट फील्ड में बच्चा कहीं पे जॉब कर रहा हो, प्रैक्टिकल्स कर रहा हो, तो जो लर्निंग थ्योरी की होगी वो इमीडिएटली उसको अप्लाई कर पाएगा. सिमिलर इंडस्ट्री से किसी को मेंटर अपना बना सकता है फॉर फर्दर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियरर. अब आप देखिए WILP में कैंडिडेट इज वर्किंग, जी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो जा नहीं सकता है. अब उसकी थ्योरेटिकल क्लासेस कैसे होती है? इट इज बीइंग डिलीवर्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी. Now technology, So it is a mixture of it is a mix online of भी होगा और yes, regular it is भी a होगा। hybrid sort of program. तो कैसे होता है, अब कई स्टूडेंट्स ये भी डाउट करते हैं कि ऑनलाइन क्लासरूम चल रहा है तो क्या ये बीटेक ऑनलाइन तो नहीं हो गया. नो, ओनली द क्लासरूम हैज रिप्लेस्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू ए ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल. यानी कि जो पहले एक क्लासरूम होता था वो रिप्लेसमेंट हो गया है अब कंप्यूटर से. आप कंप्यूटर की स्क्रीन में आप टीचर के साथ पढ़ रहे हो, और ये उतना ही इफेक्टिव है जितना एक कैंडिडेट और टीचर आमने सामने बैठे हैं. क्योंकि ये इट इज नॉट सॉर्ट ऑफ लाइव, इट इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है ये. जी। Universities Interactive classes yeah, हैं ये। universities are delivering the lectures on a real time. It is two-way interactive. Communication. Yeah. अब now when it comes to a practical, तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी पहले इंश्योर कर रही है कि कैंडिडेट को वर्क एक्स हो और वो सिमिलर इंडस्ट्री में प्लेस्ड हो, तो प्रैक्टिकल्स बच्चे के वहाँ भी हो रहे हैं और ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स भी अब क्रिएट हो चुकी हैं जो कि IITs ने क्रिएट करी हैं. कई यूनिवर्सिटीज उन लैब्स को यूज करके बच्चे को प्रैक्टिकल करवाती है. आप इसके साथ ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं हाँ, इसमें? जैसा कि मैंने बताया कि WILP मोड में या फिर जहाँ यूनिवर्सिटी केवल थर्ड सेमेस्टर में एंट्री करवाती है तो
हम इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। अदरवाइज तो बीटेक बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता, केवल 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट से एडमिशन हो जाता। जी लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेटरल एंट्री प्रोग्राम में एडमिशन देती है यूनिवर्सिटी, तो एक डॉक्यूमेंट और ऐड हो जाता है, विच आई मेंशन कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी किया उसका डॉक्यूमेंट और ऐड हो जाएगा। एंड एमटेक के डॉक्यूमेंट विल रिमेन कॉमन, क्योंकि मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जी तो 10th 12th एंड बैचलर डिग्री प्रोग्राम। बैचलर डिग्री ओके यस यस। एंड सर यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी क्योंकि हाँ अब वही हो गया ना कि डीम्ड पे जाना है प्राइवेट पे जाना है क्या अप्रूवल चाहिए तो ये भी सर यूनिवर्सिटी भी बता दीजिए इसी के साथ तो टू कंक्लूड योर क्वेश्चन पूजा कि डिफरेंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो डिफरेंस, there is no difference between both this type of मतलब वो universities. किसी के भी साथ जा सकते हैं Private deemed for the student, there is no difference. वो बस यूजीसी के नॉर्म्स है Yes, yes. सर अच्छा अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं तो आई एम श्योर कि बहुत लंबी लिस्ट होगी बट यूनिवर्सिटी की लिस्ट तो मिल जाएगी बट उन्हें सिलेक्ट कैसे करना है कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ये बताइए सर हाँ ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आए आपके पूजा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन फैक्टर्स, तो मैं सिलेक्शन फैक्टर्स बताऊंगा, मैं लिस्ट नहीं जी। बताऊंगा, बिकॉज आपने खुद ही बोला कि लिस्ट बहुत लंबी है बहुत लंबी और है कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम लें कुछ का ना लें, तो इट इज़ नॉट गुड। When it comes to a BTech, MTech, students should always check their NIRF rankings for a particular department. NAC score, जी ठीक है। NIRF रैंकिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का देता है, तो इंजीनियरिंग का स्कोर देखें। NAC हॉलिस्टिक ओवरऑल स्कोर देता है, तो NAC का स्कोर देखिए और उसका ग्रेड देखें, ए है, A+ है। प्लेसमेंट उनका देखें कि इंजीनियरिंग में उनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ को देखें कि यूनिवर्सिटी का फैकल्टीज़ का एक तो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे फैकल्टीज यूनिवर्सिटी रिक्रूट करती हैं अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ their indexes, on the basis of their own qualifications फैकल्टीज की, और इफ पॉसिबल तो फिजिकली विजिट करके जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीटेक एमटेक वहाँ परस्यू कर रहे हैं उनसे भी मिले जा करके, टू सिलेक्ट अपॉन द गुड एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर देमसेल्व्स। इसके अलावा लर्निंग मैकेनिज्म जरूर देखें यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी चेक्ड अपॉन द लर्निंग methodologies. जी What are the tools university available with them in terms of learning management system, in terms of engagement activities, other than the faculties, क्या यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और दूसरे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी से कोई सेमिनार भी हम लोग को करवाती है नहीं करवाती है, जी बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि जब बच्चा कैंपस में जा रहा होता है तो ही इज एक्सपोज्ड टू मेनी थिंग्स, बट इन प्रोग्राम्स में जहाँ कैंडिडेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी की मैथडोलॉजी क्या होगी इन ऑर्डर टू अचीव द सेम लर्निंग आउटकम जो एक बच्चा कैंपस में आके पढ़े और जो एक बच्चा बिना कैंपस में आके पढ़े। तो वो these are इफेक्टिव लर्निंग yes, so होनी these चाहिए are the things that student must consider. और सर वर्चुअल लैब्स भी होती हैं इसमें वर्चुअल लैब्स मैंने बताया आपको, वर्चुअल लैब्स आईआईटी ने क्रिएट करी हैं, और भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक बहुत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वर्चुअल लैब्स क्रिएट करी हैं, जो कि अब फिजिकली लैब में जाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर पे ही पूरा लैब का एक सिमुलेशंस के साथ यूज करके पूरा डेमोन्स्ट्रेशन और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। टेक्नोलॉजी कुछ Yes. ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है सर It's a सब कुछ हो रहा है continuous, it's a वर्चुअली continuous process. तो सर अब ये सारी चीज़ें तो आपने बता ही दी कंक्लूड कर दी बट अब इसके साथ एक और सवाल हाँ जी। कि क्या WILP प्रोग्राम वर्थ इट है भी या नहीं स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है पूजा, मैंने सब कुछ बोल दिया कि बीटेक को एमटेक को वो इवनिंग में कर लें, हाँ वीकेंड में कर लें, संडेज मतलब गेस्टेड हॉलीडेज में कर लें, या WILP मोड में काम करने के दौरान अपना करते रहें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये इसकी वैल्यू है या नहीं है, फॉर ये उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करेंगे या नहीं करेंगे, जो बीटेक एमटेक करने वाले बच्चों बिगनिंग में ही, कि बीटेक इज ओनली ए रेगुलर प्रोग्राम, WILP, evening, second shift, third shift, weekend, these are just the mode of learning. Classroom दिया online, mode of learning.
बीटेक एमटेक विल गोइंग टू रिमेन ए रेगुलर प्रोग्राम। तो आई वुड से बच्चों को ये सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं अगर डब्ल्यूएलपी से करूंगा या बीटेक को मैं इवनिंग शिफ्ट में करूंगा, और वो भी मैं क्लासरूम को कंप्यूटर या पे करूंगा, तो मेरी डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। इट विल गोइंग टू बी 100% वैलिड। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी सीखने के, चाहे वो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, चाहे वो आपके सैलरी हाइक। इंक्रीमेंट्स, या चाहे प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स, यू विल गोइंग टू अचीव ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स। सो ये सब बस एक तरीके से साइनोनिम्स हैं रेगुलर के। सिंपल, यस। सो सर दैट मीन्स कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बिल्कुल वैलिड है, तो मतलब स्टूडेंट्स आराम से इसके थ्रू। कोई कोई मुझे कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज इट्स ए बीटेक प्रोग्राम। मैंने बताया, अब स्टूडेंट कैन कम फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, कैन कम फ्रॉम द प्राइवेट जॉब, कैन कम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड, सो हाउ डज इट मैटर? बीटेक विल रिमेन बीटेक। तो केवल मोड बदला है। जी। यस, इट गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट हो, आप किसी बिजनेस में हो, फॉर एनी या किसी पर्पस टॉप यू कैन एमएनसीज परस्यू में इट। जा रहे हो। यस, यस। टॉप एमएनसीज में भी स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एक टॉप एमएनसीज के लिए क्वेश्चन आता है कि क्या हम कर एब्सोल्युटली सकते वैलिड हैं। पूजा। आप अपने बच्चों को बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से बताइए कि इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी थैंकफुल, आपने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। एंड इसके साथ एक और चीज़ क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, कि उनकी डिग्रीज पे क्या मेंशन होने वाला है सर। देखिए, मार्कशीट यूनिवर्सिटी अवार्ड करेगी, डिग्री अवार्ड करेगी बीटेक एमटेक के बाद, एंड इट्स ए वेरी सिंपल टू आंसर। वेर इट इज अ रेगुलर प्रोग्राम, तो रेगुलर ही लिखा होगा उस पे रेगुलर ही लिखा। रेगुलर ही यस, लिखा यस। रहेगा। बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 में यूजीसी ने एक गैजेट भी नोटिफाई किया कि तमाम डिग्रीज पे सारी यूनिवर्सिटीज को मोड ऑफ एजुकेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये डिस्टेंस एजुकेशन मोड में हुई, या रेगुलर से हुई, या ऑनलाइन मोड से हुई? टिपिकली यही 3 मोड हैं टेक्निकली जी। जो अप्रूव्ड मोड्स हैं। तो उस पर रेगुलर ही लिखा हुआ आएगा। क्योंकि ये एक रेगुलर इट्स डिग्री ही है, तो इट्स अ आपकी बीटेक। डिग्री पे भी बिल्कुल रेगुलर लिखने आने वाला है। बिल्कुल। अब सर जब हम बीटेक एमटेक डब्ल्यूआईएलपी प्रोग्राम या वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम इनकी बातें करते हैं, तो एक बहुत पुराना केस आता है। कुछ सालों पहले एक केस था कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, ओपन यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने प्रोग्राम ऑफर करे और एकदम से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सबकी डिग्रियां बिल्कुल इनवैलिड हो गई। हम्म। सो सर उस चीज़ को, उस केस को एक बार इलाबोरेट करिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और स्टूडेंट्स का जो ये कंसर्न है, जो आपने मुझे बताया कि बहुत डाउट आते हैं बच्चों के कि बीटेक एमटेक जो हम इवनिंग से करेंगे वैलिड होगी या नहीं होगी, डब्ल्यूएलपी मोड में करेंगे तो वैलिड होगी या नहीं होगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्लासरूम की से पढ़ाई करेंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, वहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली ये रीज़न, एक्चुअली इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी है। जी। आई वुड से लाखों बच्चों के साथ ऐसा हुआ, जहाँ उनका समय, पैसा समय पैसा सब कुछ। और उनके जो ड्रीम्स थे कि भाई बीटेक और एमटेक के बाद हमको जॉब प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, सैलरी हाइक मिलेगा, तो वो सब उनके टूटे विचारों के। एंड दिस लेड टू मतलब एक पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो लॉट गया ऑफ आगे तक क्योस, बहुत कि। बड़ा ये मसला हुआ था। मैं हाँ आपको जी। अभी बता रहा हूँ, लाखों, मतलब बहुत लाखों, 10 लाख से भी ऊपर हो सकता है, 20 लाख से भी ऊपर हो सकता है। इतने बच्चों का पैसा, समय सब खराब हुआ। तो देयर वर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मैं नाम का डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2001 से लेकर 2005 तक के बीच में उन्होंने बहुत एडमिशन्स किए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, और बच्चों को प्रमोशन भी मिलता रहा कुछ जगहों से, और इसलिए ये चलता रहा। फिर ओपन यूनिवर्सिटी एक आई जो कि क्लियर कट डिस्टेंस मोड में ही उन्होंने बीटेक एमटेक को करवाया। अब हुआ क्या कि जब ये बच्चे अपने प्रमोशंस के लिए, सैलरी हाइक्स के लिए लगाते थे, तो एक मैटर कहीं उड़ीसा में फंसा कि भाई बीटेक एमटेक तो इज़ नॉट वैलिड इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये मैटर धीरे धीरे चलता हुआ, बिकॉज जैसे ये बीटेक का हुआ तो एआईसीटी को भी पार्टी बनना पड़ा, जी। और यूजीसी क्योंकि यूनिवर्सिटी
वो तो सुप्रीम बॉडी। गवर्न करती है, तो उसको भी बॉडी बनना पड़ा। तो ये एआईसीटी और यूजीसी ने क्लियर कर दिया भाई कि नो, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिग्रीज आर नॉट वैलिड सिंस वी हैव नेवर गिवन एनी सच परमिशंस, और टेक्निकल प्रोग्राम है, डिस्टेंस में चल ही नहीं सकता है। तो कोर्ट ने एक सीरियस इस पे संज्ञान लिया कि बात लाखों बच्चों की है। इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग तो वो यूनिवर्सिटीज और हमारी एपेक्स बॉडीज की तरफ से हुआ है कि एआईसीटी ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, यूजीसी ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, इतने लाखों बच्चे एनरोल कर गए। तो एक बहुत अच्छा इसमें फैसला किया यूजीसी और एआईसीटी को, आदेश दिया कि आप इनके बच्चों के 1 साल के अंदर कम से कम 2 चांसेस इन बच्चों को दो, ये एग्ज़ाम दें, और जो बच्चे पास हो जाए उनकी डिग्री को तो वैलिड कर दो, जो बच्चे फेल हो जाए और या एग्ज़ाम ही ना दें उनकी डिग्री अपने आप इनवैलिड हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक कोर्ट का आदेश था, जिसमें उन्होंने देखा भाई कि स्टूडेंट हैज़ इन्वेस्टेड इट्स टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग, तो उसको एक ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। वेयर एज ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वेन एवर यू विल गो रॉन्ग वे, बिना अप्रूवल्स के आप किसी कोर्स को करवाओगे, मोड जो आपको अलाउड नहीं है उस मोड में आप डिग्री प्रोग्राम्स करवाओगे, तो आप भी प्रॉब्लम को फेस करोगे और आपके स्टूडेंट्स भी फेस करेंगे जी। तो साथ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं हमेशा बताता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी की अप्रूवल्स को ज़रूर देखें। जिस कोर्स को करना चाह रहे हैं, अगर उसकी कोई काउंसिल है तो उस काउंसिल के अप्रूवल को ज़रूर देखें, उस काउंसिल की वेबसाइट पे जाके नोटिस को ध्यान दें, क्योंकि ये काउंसिल टाइम पे नोटिस, पब्लिक नोटिस अपनी वेबसाइट पे लाती रहती हैं। काउंसिल के लिए भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री का साइज बहुत बड़ा है, बच्चे का नंबर बहुत बड़ा है कि हर बच्चे को वो जाके बता सके। तो एक पब्लिक डोमेन पे वो नोटिस को डाल देती है भाई कि ये चीज़ें ध्यान रखो। तो आई वुड एडवाइस कि भाई बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल सर, हमने ये चीज़ देखी कि लैक ऑफ अवेयरनेस है स्टूडेंट्स के, हम्म, और उसी को क्लियर करने के लिए हम ऐसे सेशंस लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे, सो दैट कि उनके फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हमने ये पोर्टल बनाया है, AI पावर्ड पोर्टल, दैट इज़ कॉलेज विद्या। हम्म, तो उसमें भी हम एक बहुत अच्छी, हमारे रिसर्चर्स ने सबने एक बहुत अच्छी चीज़ करी कि केवल हमारे पास अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो स्टूडेंट्स को इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं अपने लिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। दैट्स वेरी नाइस। आप बच्चों को एक राइट इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो, दे जी। रहे हो। सो सर, दिस यू हैव क्लैरिफाइड कि ये रेगुलर डिग्री है, अब आपका हो विल्प, WILP हो, या फिर पार्ट टाइम हो, या फिर वीकेंड हो, इवनिंग हो, कुछ भी हो, ये या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्लासेस दी जाए, एवरीथिंग इज रेगुलर ओनली। यस। तो अब बात आती है कि जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो भी सेम ही होंगे। मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करता हूँ पूजा। ऑब्वियसली फैकल्टीज़ जो कैंपस में होंगी वो तो इन बच्चों को पढ़ाएंगी, वही क्लासेस डिलीवर करेंगी। जी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब जब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है हम्म, तो चीज़ें बेहतर होती हैं और बेटर हो जाती हैं। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में या WILP करवाती हैं, मैं उनके साथ जब डिस्कशन करता हूँ तो पता लगता है कि दे हैव हायर्ड फैकल्टीज फ्रॉम IITs जो कि बहुत दूर है उनके कैंपस से। लेट्स से IIT गुवाहाटी से कोई फैकल्टी उनके WILP के बच्चों को पढ़ा रहा है, यूएस में बैठा अच्छा प्रोफेसर उनके बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इट हैज जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और जो आपका क्वेश्चन है, मैं इतना बोलता हूँ कि फैकल्टीज जो कैंपस प्रोग्राम में है उससे बेटर ही होती हैं। सेकंड, सिंस डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दिया जा रहा है, मैंने पहले भी बताया, तो नॉट ओनली फैकल्टीज, इसमें बच्चे को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक सक्सेसफुल स्टोरी है, उनसे भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनको ईज आउट कर देती है ना। ईज आउट कर कि देती है। कोई मुंबई में बैठा हुआ है और बच्चे बहुत जगह पे बैठे हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी उनको एक साथ ले आई। इवन फैकल्टीज भी उन्हें कहीं से दूर से, इवन मुझे लगता है इंटरनेशनल अगर कहीं से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो भी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। यस, बट यस। अगर हम बात करें कि रेगुलर क्लासेस में ही जाना है, तो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इतनी अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाती, लिमिटेड हो जाती है, विच लिमिटेड हो कैन बी जाती है। यस, पॉसिबल थ्रू यस, 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 यस। टेक्नोलॉजी। इवन मैं एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेट्स से वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट बीटेक एमटेक।
अब जो 10+2 के बाद भी जो बच्चे बीटेक एमटेक कर रहे हैं, बिलीव मी, अब ये हाइब्रिड मोड में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे 100% रेगुलर कैंपस में बैठ करके क्लासरूम कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी 30-40 का रेशो को यूज कर रही है, कोई 40-60, कोई 50-50। अब यहाँ प्रैक्टिकल्स भी हो गए और क्लासरूम्स भी हो गई, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह सब कुछ मिल गए। नाउ व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन? All right, Pooja, it's a good question because when we are talking about BTech MTech, तो इसमें basically दो components का assessment होना है. One is theoretical concepts and another is practical. तो theoretical aspects और ये पूरी यूनिवर्सिटी का डिसीजन है कि वो एग्जामिनेशन को ऑफलाइन करती है, ऑनलाइन करती है. नो एपेक्स बॉडी हैज एनीथिंग टू से ऑन दिस, वो यूनिवर्सिटी का कॉल है. बट क्योंकि ये बीटेक और एमटेक प्रोग्राम है और थ्योरेटिकल और या मतलब प्रैक्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंस इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो थ्योरेटिकल तो यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन असेसमेंट करती है प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट में, एआई ड्रिवन एनवायरनमेंट होता है. और आई विल से कि वो फिजिकल इन्विजिलेशन से भी स्ट्रिक्ट होता है. बच्चा अगर यूँ भी करता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैप्चर करती है और जी। फ्लैग रेज करती है. वेयर एज इन्विजिलेटर तो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पीछे जो बच्चे हैं वो कुछ भी कुछ भी कर कर सकते हैं, बट वो कंप्यूटर ऐसा होने नहीं देता. जी। बट प्रैक्टिकल आई विल से नो. जहाँ लेबोरेटरीज है, अब बीटेक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इसको इसको ऑनलाइन इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता. तो आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटीज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैंपस में ऑफलाइन मोड में करवा रही होंगी. So, sir, I think we have covered all the doubts of the student, and now we come to an end of this session. अगर आप हमारे स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहें तो. Now today's because we have discussed about the technical programs, BTech and MTech. So my advice for this particular community who wish to pursue these programs while they work, since there are the options, they can pursue these programs in a part-time mode or in a WILP mode, which is work integrated learning programs. They can have such degrees, but important is to for them is to undergo and follow all the guidelines laid down by UGC and AICT in terms of classes and in terms of examinations. Let me be more precise in this aspect. I mean, see, because now technology has grown very much. Classes can be delivered, theoretical classes can be delivered online, and they can attend these classes. But practical classes, there is no other way. You need to be present physically in the classroom or in the laboratory, and the same for the examination. Again, theoretical examinations can be occurred in a technology using the technology functions, but practical exam cannot be. There are because the objectives of the students are very important for their career, for having these BTech and MTech degrees. So they should not find out the easiest way of doing these programs in order to have the validity of the degree when they finally attain this degree. So there are certain institutions which can give them the complete ease of doing these BTech and MTech in any of the modes. But I advise them to not look for the easiest ways. Be physically present for the practical classes and for the practical examination in the campus. Do not run away for that, because after 3 years or 2 years, you should not feel cheated after you spend your precious time and money. Your objective should be met. जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने ये बीटेक एमटेक प्रोग्राम कर रहे हो या करोगे, तो वो you should achieve that objectives. So this is my message to this community. Thank you. थैंक यू सो मच सर. एंड स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपके पास और भी क्वेरीज हो तो आप हमेशा हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं. इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. थैंक यू सो मच.